السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن میں اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک اور ایک جگہ ہے کہ ساتھ وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سب سے زیادہ ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ اور یہ وہ لفظ ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقشہ کھینچتا ہوں، میری طرف دیکھیے گا۔ 7 میل سے مسلمان اور ہندو جب اکٹھے رہتے تھے، اب بھی انڈیا مسلمان میں پاکستان میں بھی رہتے ہیں، انڈیا میں بھی رہتے ہیں، ہر جگہ رہتے ہیں، دونوں کے بچے پڑھتے تھے، پیٹ پہ پتھر تو مسلمان کی بچی آدمی نہیں اور ہندوؤں کی بچی اکٹھی پڑھتی تھی، سارے کفار کی فوجیں ہیں اور یہ خندق کھودی جا رہی تو ہے۔ مسلمانوں کی بچی خندق میں اسے دین کے بارے میں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی رہتی تھی جو گھر سے سنتی تھی۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد، فضائل، کمالات، برکات کہ کوئی بھی کام کریں بسم اللہ، کوئی بھی کام کریں بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے، اس میں بھی حامی خیر ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے۔ اگر اتنے حالات آئیں یہ چیزیں آخر جو ہو ہے جائے، وہ سنتے اتنے رہتے تھے، حالات آئیں کہ آخر ہو جائے، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ اس کا رجحان دین کی طرف، شریعت کی طرف، کملی والے کی غلامی کی طرف ہونے لگا اس ہندو بچی کو، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ اندر اندر مسلمان ہو گئے۔ اب مجھ سے کوئی بات پوچھتے ہیں اس کو کتنی تو تعداد جب وہ میں مسلمان پڑھا ہو جائے؟ گئی، میں ان سے عرض کروں گا اس نے اپنے اسلام کو چھپایا۔ دن پڑھیں، رات پڑھیں، صبح پڑھیں، شام یہ جو ایمان کی خوشبو ہے، ہر حالت میں پڑھیں، ہر لمحہ یہ پڑھیں، آخر ہر کار لحظہ پھوٹتی پڑھیں۔ ہے، عورتوں اور بچوں کے لیے اور گھر والوں میں کو اس پتہ کے چلتی ہے۔ تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا جس کو آپ کو توجہ دلاؤں گا، تھوڑے سے فائدے اب گھر والوں نے بہت سمجھایا، بہت اس کو بھٹکایا، بہت روکا، کہ میرے اللہ کے نبی کا لیکن وہ نہ روکی، نہ اس سے سمجھی، بڑا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرا فائدہ اور اس نے یہ کوئی ہے توجہ نہ کہ یہ آل کوئی محمد دھیان اور نہ اصحاب محمد اس وقت جو غزوہ خندق میں میرے مدینے والے اس کا اسلام پکا، اس کا ایمان پکا، اس کا دین مضبوط، اس کا یقین مضبوط۔ ٹھیک ہے، اب اس وظیفے کے جو کمالات محدثین نے لکھے ہیں، آخر کار گھر والوں نے کہا کہ اس کو کوئی بہانہ بنا کے اکابر قتل کر دیا جائے، صالحین، مار دیا اولیاء، جائے۔ اللہ والوں نے اور ہمارے اکابر ماں نے ایک بڑوں بہانہ لکھی بنایا، ہیں۔ اپنی انگوٹھی ایسی اتاری، آپ ایسے اتار کے اس کا کہا کہ گمان بیٹی نہیں یہ کر لے سکتے۔ انگوٹھی، اور اس انگوٹھی کو جا کے نا اپنے پاس حفاظت سے رکھنا، جادو کا ورڈ، اور دیکھو میں پھر یہ آپ سے لے لوں گی، اور اخیر ہو اور مہنگی انگوٹھی ہے، قیمتی ہے، اگر تم نے اس کو گم کر دیا میں تجھے مار ڈالوں گی۔ جادو کر کے دکھایا، اس نے کہا ماں کوئی مسئلہ نہیں، اس کا توڑ، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انگوٹھی لے لی۔ بہت زیادہ پڑھیں اور کھلا پڑھیں، اور ہر اس نے نا گھر کی کسی الماری کی کسی اوپر کے کمروں میں اوپر برتن میں کہیں چھپا کے نا انگوٹھی رکھ دی، ماں دروازے سے دیکھ رہی کہ اس نے کہاں رکھی ہے، اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے انگوٹھی رکھی کہ مولا تیری امانت تیرے حوالے ہے۔ اصل پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مراد یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی عزت کو، اپنی آبرو کو، اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو، اپنے وقار کو، اپنی شان شوکت کو، اپنے علم کو، اپنے حلم کو، اپنی عطا کو، اپنے غنا کو، جو کچھ تیری عطائیں ہیں جو تو نے دی ہیں مولا، ان سب کو میں نے تیرے حوالے کیا۔ اللہ کہتے ہیں اگر میرے حوالے کیا تو مجھ سے بڑا محافظ کون ہے، مجھ سے بڑا حفاظت کرنے والا کون ہے، اور مجھ سے بڑا دینے والا، عطا کرنے والا کائنات میں اور ہے ہی کون۔ تو ماں نے کیا کیا، ماں نے وہ چپکے سے جب وہ گئی تو وہ انگوٹھی ہٹائی، اٹھائی، اور گاؤں میں جو گہرے تالاب ہوتے ہیں اس تالاب میں انگوٹھی پھینک کر کے دکھائے گا۔ اب کچھ ہی دنوں کے بعد، وہ تو سوچی سمجھی ترتیب اور سکین تھی، کچھ ہی دنوں کے بعد ماں نے کہا بیٹی وہ انگوٹھی لانا جو میں نے تمہیں دی تھی رکھنے کے لیے، امی آپ ابھی لائی، اور یہ اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس ہاتھ برتن میں ہاتھ ڈالا تو انگوٹھی وہیں سے آئی، اس نے ماں کو لا کے انگوٹھی دی، ماں حیران، اور وہ دیکھے کہ وہی انگوٹھی، میں نے تو اس کو اٹھا کے پانی کے گہرے تالاب میں ڈال دیا، چھوٹی سی انگوٹھی کہاں تالاب میں ملے،
तो माँ अचानक हैरत से बोली, ये कहाँ से लाई? नहीं, आपने दी थी, मैंने अंदर रखी थी। कैसे रखी थी? हमारे इस्लाम के धर्म मजहब में हर चीज के रखने, उठने, बैठने, करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बताया और मुझे उसके फायदे बताए। और जब से मैंने उसके फायदे सुने तो मैंने ये बिस्मिल्लाह करके वो किए थे तो मुझे मिल गई। जोड़ों के दिल के मरीजों को बताया। ये चोट ऐसी लगी कि माँ भी कहने लगी कि मुझे भी वो धर्म दे जिस धर्म के अंदर इतनी सदाकत है, इतनी ताकत है, इतनी तासीर है, इतनी कुव्वत है। सारे घर वालों ने हमारे अकाबिर बुजुर्ग औलिया सुलहा ने एक अमल दिया है जो मैं हर साल 26 की रात को कराता हूँ और साल में 2 दफा कराता हूँ, एक 26 की रात को और एक जमाती सानी की तीसरी जुमेरात को। इस साल में 2 दफा मैं ये अमल कराता हूँ और जिसने भी ये अमल किया और हमेशा उसने इस अमल को बहुत बाकमाल बताते हैं कि कैंसर 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कागज पे लिखनी है बस। पढ़ा था हामीम लायुन सारों, उन्हें सफेद कागज वजीफा क्या होता उस पर 600 पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जेर जबर ना दें, कोई हर्ज नहीं, ये बताएं। लेकिन 625 बार लिखना है। आप लिख के किसी को हदिया कर सकते हैं लेकिन फोटो कॉपी नहीं। छोटी मोटी बीमारियां ठीक नहीं होती। एक शख्स है, अनपढ़ है, नहीं लिख सकता, आप उसको लिख के किसी को दे सकते हैं। अच्छा, इसके वो उसको हदिया कर सकते हैं, लेकिन इसकी फोटो कॉपी नहीं है कि एक बार बंदा लिखे और लाखों लोगों तक या सैकड़ों तक या सारे घर को पहुंचा, उसका सवाब मिलेगा। बहुत बाकमाल है। हाँ, आप उसी 26 की रात को 625 दफा का एक कागज लिखें, फिर 625 दफा दूसरी बार लिख लें किसी और कागज पे, फिर 625 दफा तीसरी बार लिख लें। ये मुमकिन है, लेकिन इसकी कॉपी मुमकिन नहीं। इसके अनोखे कमालात हैं और इसकी अनोखी तासीर है, इसके अनोखी बरकत हैं और इसका अनोखा निजाम है जो आप और मेरी अक्ल समझ से मावर। 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, हमारी समझ से मावर। एक रिवायत में है 32 शहीदों का बहुत अनोखा कमाल है। ये मुहद्दिसीन ने देखें, एक बात से नशीन रखिएगा, मैं कोई भी अमल बताता हूँ और उस अमल की तासीर बताता हूँ, कोई भी अमल हो और उसकी तासीर हो उसको बताता हूँ तो उसके साथ मेरे हवाले होते हैं, रेफरेंस होते हैं और उन हवालों के साथ ही वो अमल मैं बताता हूँ। बगैर हवालों के वो अमल मैं नहीं बताता। ये कागज ये लिखा मेरे पास भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका हल इस अमल के मेरे पास किताबों के हवालों के हवाले हैं। मैं वजीफे बनाता नहीं हूं, बताता हूं। ये बात से नशीन रहे। एक है कि बंदा वजीफे बनाता है, खुद साख्ता अपनी मर्जी से, कभी ये बना दिया, कभी ये बना दिया, कभी ये बना दिया। ये देखिए, इसको 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखिए बारीक बारीक, फिर उसको कागज में हमने लेमिनेशन करा लिया। उनकी जिंदगियों का साथी है 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखिए, उसको कागज में हमने लेमिनेशन करा लिया ताकि कागज खस्ता ना हो जाए और ये जिंदगी में एक दफा करना है, ऐसा तो नहीं कोई हर साल नहीं लिखना। हाँ, हर साल लिखें, हर साल लिखें, दूसरों को हदिया कर दें, बहुत पुरानी बात, उसको समझा के हदिया करें कि इसके ये फायदे हैं, इसकी ये तासीर है और इसका ये कमाल है, उसको हदिया कर दें। लेकिन बिन बताए नहीं। मेरी कोई मुलाकात उस बेचारे को क्या पता इसके क्या फायदे हैं। मुलाकात हुई, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी अमल में देता हूँ उसकी कुरान से सनद, उसकी हदीस से सनद, औलिया सुलहा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन बड़ी बड़ी हस्तियों से उसकी असनाद मौजूद है, बड़ी बड़ी हस्तियों से उसकी असनाद मौजूद हैं और वो असनाद जो हैं वो मौजूद हैं कि जो कोई इनकार नहीं कर सकता। मौत मरा जबकि उसका बाप, और अगर आपने इसकी सनद देखनी है पावरफुल था तो हमारा एक पेज है अकाबिर पर एतमाद, फेसबुक पे, व्हाट्सएप, इंग्लिश में लिखें अकाबिर पर एतमाद, फौरन एक पेज खुलेगा। जब से आपने मेरे हर वजीफे का हवाला, मेरे हर वजीफे की सनद, मेरे हर वजीफे का रेफरेंस और उस हर वजीफे की ताकत महसूस नहीं होती कि मैंने बिल्कुल आसान सिर्फ ये मैंने नहीं, इससे सदियों पहले बड़ी बड़ी हस्तियां इस वजीफे को बताती चली आ रही हैं। सबसे बड़ा खुद वसीला
है, वसाइल है, इस तरह इस वजीफे की भी सनद है, ताकतवर चीज है, रेफरेंस बहुत है, ताकतवर चीज है, हवाले हैं और बहुत बहुत ताकतवर चीज कि है। जिसके बहुत पास ये वजीफा होगा, यानी 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ बीमारियों होगा, के लिए, कैंसर उसको के क्या लिए, मिलेगा? लाइलाज और ये रोगों मैं के क्यों लिए, बता रहा हूं कि लाइलाज 26 की दुखों के रात लिए, मसाइल कोई अमल उलझे हुए करना है। उसके लिए 26 की रात का ये अमल है जबरदस्त और सारी रात पड़ी खुला पढ़े, जितनी बार बैठ के लिखें, पढ़ें, हर नमाज के है बाद बड़ा एक तस्बीह बाकमाल, पढ़ें, अल्लाह के दुरूद बहुत शरीफ, तासीर है। सारा दिन पढ़ें, सैकड़ों पढ़ें, हादसों हजारों से, पढ़ें, और जिंदगी में बीमारियों अल्लाह से, की रहमतों का मुशाहिदा देखें। जादू जिन्नात के हमलों से, सिंध में मैं दुश्मन गया, के शर तो से, मैंने एक साहब को और जिसकी जेब में ये होगा, हर कदम पे कामयाबी, हर कदम पे कामरानी, हर कदम पे कमाल, हर कदम पे इज्जत, हर कदम पे राहत, हर कदम पे शान और शौकत। कुरानदाजी में नाम नहीं आ रहा था, अल्लाह के नाम में ताकत है। वो कहता है असल में इस कागज में मसला हो, मुझे आपने जो लिखा है ना, ये पढ़ा, अल्लाह पाक जल्ल शानहू के 3 नाम तो वाज़े लिखे हैं। एक अल्लाह, में छाप दूंगा, बिस्मिल्लाह, अल्लाह, दूसरा रहमान, जो मेरी और तीसरा रहीम। बरकत से और मेरे असलाफ और ये जो बे है ना, बे बिस्मिल्लाह की बा जिसे कहते हैं, बे बा, साथ ना ले जाऊं, ये बा और बे जो है, में अल्लाह इसकी अपनी एक ताकत है। मेरी चाहत है, ख्वाहिश है। देखिए, सारा कुरान हुरूफ तहज्जी से मिलके बना है, अलिफ बा से मिलके बना है। बाद जाना हुआ सारा कुरान हुरूफ तहज्जी से मिलके बना है। अब बात में एक बात सोचता हूँ, हमारी उर्दू की लिखाई, सही मैं लिख दूंगा, उर्दू की लिखाई कुरान की लिखाई से मिलती, हिंदी नहीं मिलती, इंग्लिश नहीं मिलती, और उसके अलावा जापानी नहीं मिलती, चीनी नहीं मिलती, फला नहीं मिलती, गुजराती नहीं मिलती, नहीं मिलती। नमाज फजर के लिए अजान कुरान की लिखाई से नहीं मिलती, रस्म और सो खत। रहे होते हैं, उर्दू कुरान की लिखाई से आज मिलती है। तक उन्होंने मुझे सर उठा के नहीं देगा, आज पहली रात है, कुत्ते मेरे पीछे ये पड़े। नेमत है। क्यों? मैं ये पढ़ता हुआ जाता हूँ, कब्र की जुबान मुझे नहीं देखता। कुरान अरबी और होगी, ये लफ्ज़ कब्र में हर बंदा अरबी बोलेगा। कुत्ता है ना, जो सवाल और जवाब होंगे, अल्लाह निजाम सारा चलाएगा, खुद ब खुद अरबी आना शुरू हो जाएगी। उलाइका कल मुनकर नकीर के सवाल और जवाब अरबी में, जन्नत की जुबान अरबी, कमली वाली की जुबान अरबी, जिब्रील की जुबान अरबी, और अल्लाह की जुबान अरबी। अल्लाह की मोहब्बत, उसके हबीब की मोहब्बतों से जब कुरान जुड़ जाता है, अरबी में। वो इंसान नहीं, वो जानवर होता है। जानवर नहीं, जानवर ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो ये जानवर है, नक्श है और पुरतासीर और ताकतवर नेमत है और तोहफा है, भैंस, भेड़, ये एक जानवर नसीब है, और मुकद्दर वाला मुसलमान होता है जो इसको लिखता है और इसकी कदरदानी करता है, और फिर इसको चूमता है, और फिर इसको अपने साथ किसी पर्स में, अपने किसी वॉलेट में, या ऐसी कोई थैली में कहीं भी आप रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं। लेकिन एक चीज है, ऐसे लोगों इस पर्स में ना रखिएगा जो पर्स पैंट की बैक पे होता है, उसमें न रखिएगा, उसमें बेअदबी का इस्तेमाल। आप कोट पहनते हैं, आप 3 पीस पहनते हैं, कोई हर्ज नहीं, आप कोट में रखें, आप शर्ट में रखें, लेकिन पैंट की पीछे बैक पे बाजों का वॉलेट होता है, पर्स होता है, उसमें अदब का मामला होता है और बहुत ज्यादा अदब होता है। आपको अदब को एक छोटी सी बात बताऊं कि एक साहब हल चला रहे थे, अक्सर कहता हूँ कि और हल चलाते चलाते उन्होंने किबले की तरफ थूका, और बेख्याली में थूका, इंसान को बेख्याली में। हम भी अगर किसी को किबले की तरफ बेख्याली में थूकता देखें तो उस पर इतराज ना करें कि पता नहीं वो बेख्याली में थूक रहा। मरने से पहले आप मुझे एकदम ख्याल आया, कह सकते, अपने आप को कहने लगा, तुझे मैंने कई दफा कहा था नहीं कह सकता कि तू बेख्याल, तू किबले की तरफ ना थूका कर, तो फिर थूक लिया तूने, अब तुझे सजा मिलनी चाहिए। अपने आप को कहने लगे तुझे सजा मिलनी चाहिए। इस थूक को अपने मुंह से उठा, अपनी थूक को खुद उठा अपने मुंह से, और मुंह से उठा के इस थूक को तू जो है अब खैर मैंने अब मुंह करीब जब ले गया लगा जी अब कुत्ते तो अदब का आलम यह है कि अल्लाह ने उस थूक को लाल मोती और हीरा बना दिया। के लिए पढ़ा, जिस मुश्किल अब इसका अंदाज एकदम बदला और अंदर जज्बा बदला, और शैतान और नफ्स ने वसवसा डाला, एक थूक ऐसी और डाल ले, मुंह से उठा ले, एक हीरा और बन जाएगा। कुछ नहीं होगा, मैं कहता हूँ होता है। तो पहले अनजाने की थी, तू डरता, पहले नादानिस्तगी की थी, अब जाने की है। अनजाने का तो गुनाह रब माफ करता है। अब इसने जाने में फिर थूक फेंका,
اور منہ قریب لے گیا بڑوں سے اجازت اور ہے، وہ اس لیے آپ کو اجازت بچھو بنا اور اس نے زبان پہ ڈسا اور آپ یہ وہیں بھی مر اجازت ہے کہ مخلوق کو بتائیں اللہ کی مخلوق ادب۔ کو نفع پہنچے، میں اس عمل کا ادب بتا رہا ہوں یہ اجازت ہے۔ ہماری معتبر اپنی کتابوں میں، بیماریوں کے لیے، مستند اپنے کتابوں میں، جادو اس کے لیے لیے، میں نے اکابر اپنے پر دکھوں اعتماد کے کا لیے، جو حوالہ دیا ہے، اپنی مشکلات اور اس مسائل کے لیے، 625 اپنی بار بسم زندگی اللہ کی الرحمن ناکامیوں کو الرحیم دور کا کرنے کے لیے باقاعدہ پڑھیں، کتابوں کے حوالے دیے ہیں۔ پڑھیں۔ بڑی بڑی ہستی